There are many truths in Scripture और यहाँ that पे we are not going to touch in these 2 days. और ये 2 दिन में बहुत सारी सच्चाइयाँ इस हमारे वचन के अंदर है, बाइबल के अंदर है, लेकिन हम उन सबको छूने नहीं जा रहे हैं। We are trying to concentrate on those particular subjects which are not emphasized generally in today's preaching. और आज के मसीह जो कलीसिया के अंदर जो चीज़ों को ज़्यादा मुख्य स्थान नहीं दिया जाता, इनके बारे में हम प्रचार करेंगे। It's not that we don't believe those other things, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते, but it'll take a long time if we're going to speak about all the truths we believe. जो विश्वास हम करते हैं, जो सच्चाइयों के बारे में, उन सब के बारे में प्रचार करने के लिए बहुत समय लगेगा। If we look at the New Testament, we find from the day of Pentecost onwards, the main emphasis is on dependence on the Holy Spirit. अगर जो हम नए नियम में देखते हैं पेंतिकोस्त के दिन के बाद, तो देखते हैं कि पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहने के बारे में कई जगह में मुख्य स्थान दिया है। And what they call the Apostles' Doctrine, which today we call the New Testament. और जो प्रेरितों का जो सिद्धांत है, उसको हम नया नियम करके कहते हैं। That was the emphasis. God's Word and the Holy Spirit. यानी कि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, उसको ज़्यादा हम मुख्य स्थान देते हैं। And so, what the devil has done is allow people to read God's Word, but leave out certain important things. तो शैतान ने क्या किया कि वो वचन तो पढ़ने देता है, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ों को उनके आधार को या उसको ज़्यादा प्रमुख स्थान नहीं देने देता। See, I mentioned yesterday some of the things which are hardly emphasized. और कल मैंने बहुत सारी बातें बताया जो कि मैं ज़्यादा प्रमुख स्थान नहीं देता। I mean, I could show you a number of verses where you'd be surprised if you see what Scripture actually says. और आप चकित हो जाएंगे अगर जो देखेंगे कि वचन क्या असलियत में कहता है। And because we haven't read it carefully, we missed out on something. और हम सही तरीके से ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कई चीजें जो है उसमें से लापता हो जाता है। Then we are not living the way God wants us to live. और हम उस प्रकार का जीवन नहीं जीते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। And whatever church we build is not the church of Jesus Christ. और जो कलीसिया हम बनाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया नहीं। So I want to show you something in the book of Exodus. और निर्गमन की किताब से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। The Old Testament had many things which are a picture of what is fulfilled in the New Testament. और ये पुराने नियम के अंदर बहुत सारे ऐसे तस्वीरें हैं जो कि पूर्ण होता है नया नियम में। Some of that we already know. और उनमें से बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। Like the Lamb of God is a जैसे picture of कि Christ. परमेश्वर का मेमना जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। I mentioned some other things और भी also बहुत सारी मैंने yesterday. बताया। But here's another one. और एक और And है यहाँ that's पर, the tabernacle. और यह है परमेश्वर के तंबू के बारे में। In Exodus 25 verse 8. और 25 निर्गमन 25 उसका 8वां The Lord वचन। told Moses, let them construct a sanctuary for me that I may dwell among them according to all that I'm going to show you as a pattern. You must construct it. और यहाँ पे लिखा है, और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं वैसा का वैसा उसको बनाना That है। was God's dwelling place in the Old Testament. और ये पुराने नियम में परमेश्वर का निवास स्थान है। That's why His fire was upon them on इसलिए that tabernacle. इसलिए परमेश्वर के तंबू के ऊपर परमेश्वर की आग उतरती थी। And that's a picture of the church today, the local church, which is God's dwelling place. और यही तस्वीर है हमारे यहाँ का जो चर्च कलीसिया है उसका। Whenever people come together as a church, that's the Old Testament tabernacle was a picture of that. और जब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं वही तस्वीर है पुराने नियम का तंबू। So there are two things we see here if you look carefully. यहाँ पे अगर जो ध्यान दे तो दो बातें हैं। The purpose of the sanctuary is that God Himself may dwell in the midst of His people. और पहला ये है कि परमेश्वर स्वयं लोगों के बीच में आकर रहना, वास करना चाहता है। Keep that in mind. Keep that in mind. और हमेशा अपने दिमाग में And रखें। secondly, और दूसरा, everything must be, verse 9, exactly according to the pattern that I'm giving you. और दूसरी बात यह है कि
सब सामान का नमूना जो उसके अनुसार जो दिखाया है बिल्कुल वैसा का वैसा बनाना है। Please remember these two things. ये दो बातें याद रखें। That must be true in our church. और हमारी कलीसिया में भी यही होना चाहिए। Always recognizing the important thing is not the music or the preaching, but that God is dwelling in our midst. और वहाँ का गीत गाना या कुछ और या प्रचार नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ का प्रमुख ये होना चाहिए कि परमेश्वर उसके बीच में रहना है। That when people come into our church, they must go away at the end of the service saying, "Boy, I met with Jesus." और जब लोग हमारी कलीसिया में आते हैं वापस लौटते वक्त उनको ये उनके मुंह से निकलना चाहिए कि हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की I है heard the Lord speak to me today और मैंने प्रभु को बात करते हुए सुना according to my need. और मेरी जरूरत के अनुसार। If they only go away from the church saying, "Boy, what lovely singing," I'd be terribly disappointed with my church. हाँ, अगर जो वो ये कहते हैं कि कितना खूबसूरत गीत मैंने सुना तो मैं बहुत निराश होऊंगा। Even if they said, "What wonderful preaching." हाँ, अगर जो वो ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा प्रचार सुना। But if they can go away and say, "What a wonderful Savior," then we've accomplished something. हाँ, अगर जो वो लोग ये कहते हैं कि कितना खूबसूरत उद्धार करता है तब मैं प्रसन्न होऊंगा। That God must dwell in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में वास करना चाहिए He uses men. और वो लोगों को He इस्तेमाल used करता है men then, He used men today. और उस जमाने में भी और आज भी परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल In करता है। those days, in the Old Covenant, the number of people He used was very limited. और पुराने नियम में देखते हैं कि बहुत ही सीमित लोगों को उसने इस्तेमाल You किया। know, for example, only one tribe in 12. या तो 12 गोत्रों में से एक गोत्र को इस्तेमाल किया The others couldn't do any service in the temple. और बाकी लोग जो है मंदिर में कोई भी सेवा नहीं कर If पाए। you were not born in the tribe of Levi, you just could not be in work anything in the temple. अगर जो आप लेवी गोत्र के नहीं है तो परमेश्वर के मंदिर में आप कोई भी सेवा टहल नहीं कर And there were सकते। certain other requirements, even among the tribe of Levi, for the priests. If you don't fulfill that, you couldn't be a priest. हाँ, लेवी गोत्र के होने के बावजूद भी अगर जो आपके अंदर कुछ योग्यता नहीं है तो आप वहाँ पे सेवा टहल नहीं कर It's so सकते। different today. लेकिन आज एकदम भिन्न है। You know how the Bible says there's no Jew or Gentile, आज पवित्र कलाम कहता है कि ना तो कोई No. यहूदी है ना कोई अन्य जाति है, no slave or free man, ना कोई गुलाम ना कोई आजाद व्यक्ति, educated and uneducated, पढ़ा लिखा या अनपढ़, but everyone is a part of the body of Jesus Christ. और सब जो है प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग है Every part has a function. और हर एक अंग का कुछ ना कुछ उपयोग है, कार्य है We don't appreciate that. और हम उसको जो है उसका उस प्रोत्साहन And देना चाहिए। so when we build a church today where only one preacher up there does everything, अगर जो he's going आज back to the old covenant. अगर जो आज कोई कलीसिया बनाते हैं जहाँ पे एक ही प्रचारक है जो सब कुछ करता है तो हम Where- पुराने नियम में जाते हैं। Where the body is not functioning, अगर जो शरीर हर एक हिस्सा काम नहीं कर रहा where है each member is not valued. और हर एक को जो है मूल्य नहीं दे रहे हैं तो This is distinct of the new covenant. हाँ, यही Church. भिन्नता है नए नियम के कलीसिया का। So I want you to turn now to Exodus 39 when this tabernacle was completed. और मैं चाहता हूँ कि निर्गमन 39 में देखें And I want you to notice something, a little phrase that is mentioned 18 times. देखिएगा एक ऐसा शब्द यहाँ पे उपयोग में 18 बार उसका उपयोग किया गया Now, है। when we believe that God, the Holy Spirit inspired scripture, why would He repeat something 18 times? हाँ, अगर जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा अगर जो लिखवाया गया है तो ये 18 बार एक ही चीज को क्यों दोहराया if है? you got a letter from your father and one sentence was repeated 18 times, you can be pretty sure he was trying to emphasize something. हाँ, अगर जो आपको आपके पिता से कोई पत्र मिलता है और देखते हैं कि एक ही बात को 18 बार दोहराया गया है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ ध्यान देने की बात है। You'd say, Dad, I got it. I got what you're trying to say. तो हम बोलेंगे कि हाँ पिता, मुझे पता चल गया आप क्या And कहना the चाह रहे dad हैं। says, I'm not so sure. I've got to repeat it again. हाँ, अगर जो आप ऐसे बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता क्या कहना चाह रहे हैं, आप So दोबारा से I दोहराएं। repeat it 18 times so that you get it. और मैंने इसलिए 18 बार यहाँ पे लिखा है ताकि आप समझ सकें। I don't know if there's any other phrase repeated 18 times in 2 chapters anywhere in the Bible. मुझे नहीं पता कि और कोई ऐसा लफ्ज है या शब्द है जो कि 18 बार इन 2 किताबों के अलावा कहीं और दोहराया गया है या नहीं। I've read through the Bible and I've never found it. और मैंने ज्यादातर पूरा बाइबल पढ़ा है लेकिन मैंने कहीं पे नहीं And देखा। I think I counted it correct when I said 18 times. और मेरे को लगता है कि मैंने सही तरीके से इसकी गिनती की है। So don't come and fight with me if you discovered it was 17 or 19 or something. और आके शिकायत ना करें अगर जो आपने सिर्फ 17 या फिर 19 देखा है तो। Okay, here it is. It's Exodus 39:1. 39 का 1, Just as the Lord commanded Moses. जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। He's saying he did this exactly as the Lord commanded.
यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि यहोवा ने जो है हुक्म दिया, आज्ञा दिया वैसा का and then वैसा। certain other things that he did in verse 2, 3, 4, 5. और उसके बाद 2, 3, 4, 5 में जो लिखा है, At the end, just as the Lord commanded Moses. और 5 के नीचे फिर से लिखा है यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी And थी। verse 6 and 7, certain other things, just as the Lord commanded Moses. और 6 और 7 अलग चीजें लिखी। उसके बाद नीचे 7 के नीचे फिर से वही चीज दोहराया है कि मूसा को आज्ञा दी And then थी। a number of things up to verse 21, और 21 तक फिर से अलग चीजें लिखा है। just as the Lord commanded Moses at the end of it. और आखिर में लिखा है कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी And थी। again at the verse 26, और 26 में, and again at the end of verse 29, और उसके बाद 29 के and आखिर में, 31, उसके बाद 31 के and आखिर में, 32, उसके बाद 32 के आखिर में, and verse 43, और 43, and again when you come to chapter 40, और उसके बाद 40 में जब हम पढ़ते हैं, we read again, just as the Lord commanded Moses in verse 16, वहाँ पे 16 में हम पढ़ सकते हैं, and again in verse 19, और 19, and again in verse 21, 21, again verse 23, 23, 25, 25, and 27, 27, 29, 29, and then verse 32, 32, and then it says 33, thus Moses finished the work. और उसके बाद 33 में लिखा है, इस प्रकार मूसा ने सब काम को Now, पूरा कर समाप्त किया। Sure, many of you have read Exodus 39 and 40 chapters. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये 39 और 40 पढ़ा है। Did you notice this repetition? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है कि बार I बार mean, दोहराया गया if है? I were writing it, I would have just said, made the big list and at the end said, yeah, we did this all according to what was the commandment. और यहाँ पे देखिएगा पूरा सूची बनाया और उसके बाद आखिर में लिखा है कि जो आज्ञाएं दिया वैसा का वैसा That's the किया। way I would have written it. और मैं अगर जो लिखता तो वैसा लिखता। But here the Holy Spirit has emphasized it so many times, almost every 2-3 sentences. और देखिएगा यहाँ पे पवित्र आत्मा हर एक दूसरे तीसरे वचन के बाद And उस बात को दोहरा रहा है। That is to emphasize one thing, that Moses did not use his own brain to try and modify something. इसका मतलब ये है कि मूसा ने अपना दिमाग नहीं लगाया कि किसी भी बात को यहाँ पे See, बदलने के लिए या लिखने के लिए। Remember, Moses was trained in the academies of Egypt up to the age of 40. हमेशा याद रखें कि 40 से पहले जो है मूसा ने जो है क्या कहते हैं मिस्र देश से सब शिक्षण प्राप्त किया। And the academies of Egypt were like the top universities of the world in America or something. और उस जमाने का जो है मिस्र देश का जो यूनिवर्सिटी है वो आज के जमाने के अमेरिका के जो विश्वविद्यालय है वैसा ही जो है प्रथम स्थान के हैं। Imagine getting a PhD from Harvard University or something. जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय से जैसे पीएचडी लेते हैं उसी प्रकार का तुलना किया जाता है, And स्थान किया जाता है। then somebody tries to tell you to make something and you say, hey, listen, I've done architecture in Harvard, I know how to do it. अगर जो उनसे कोई कहे कि कुछ बनाओ तो वो बोलेंगे कि मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है और मैं जानता हूँ कैसे You करना don't have है। to tell me how to build, Lord, I can make a first-class tabernacle for हाँ, you. परमेश्वर तुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं इससे भी बेहतर बना सकता हूँ। Moses would have said that at 40, but he didn't say that at 80. मूसा चाहता तो 14 बार बोल सकता था लेकिन उसने 18 बार ही बोला। That is what God wanted to drive out of his head in 40 years in the wilderness. और इसीलिए वो 40 साल से उसके दिमाग में जो चीज है उसको निकालना चाहता था, इसीलिए जंगल में उसको 40 The साल तक trouble with a चला। lot of Christians today is they think we got zeal, we got intelligence, we got cleverness, we got capability, we're going to serve God. और आज के मसीह लोगों के अंदर ये भावना है कि वो सोचते हैं कि हमारे अंदर दिमाग है, हमारे अंदर योग्यता है और हमारे अंदर जोश है, हम कर सकते हैं। And we also have money, we also a lot of willing workers, we can do something for God. और हमारे पास पैसा है और कार्य करने के लिए लोग हैं, इसलिए हम कर सकते And we हैं। have got all these technological gadgets with which we can serve God. और बहुत सारे आज के उन्नत तरीके के सामान है हमारे पास जिससे हम कर सकते हैं। You know what they don't have? लेकिन क्या नहीं है उनके पास? Brokenness. एक टूटापन नहीं है। When I was 30 years old, 32 years old, जब मैं 32 साल का था, a man of God told me एक परमेश्वर के दास ने from कहा another country, और किसी और देश में the greatest work you can do for God in India is fall into the ground and die. कि आप उस जमीन पे गिरकर मरे, वो सबसे बड़ा कार्य आप कर सकते हैं अपने देश के लिए। That's what Jesus said. If a corn of wheat falls in the ground and dies, it will bring forth much fruit. और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि कोई बीज जमीन पर गिरकर मरता है तो वो Now, कई गुना फल लेकर आता है। That was a confirmation of what God had already spoken to me about 8 years earlier when I was 24. और वो प्रभु यीशु परमेश्वर ने जो 8 साल पहले कहा था उसको उसी को एक और बात हो रहा Because है। I was seeking those days for the baptism in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा And का मैं बाट जोड़ I रहा wanted था power. और मैं सामर्थ पाने के As लिए I searched the scriptures, और मैंने वचन में ढूंढा
the Lord showed me how Jesus himself went into the water and came out. Then is when the Spirit came upon him. और प्रभु यीशु मसीह खुद पानी में जब डूबे और उसके बाद जब बाहर निकले तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई। And I saw there, even though when I was just about 23, 24, that Jesus was symbolically saying, I'm dying to myself. और यहाँ पे देखिएगा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि जो मैं चिन्ह के रूप में कि वहां पे मैं मर रहा हूँ। When John the Baptist said, I'm not going to baptize you. I have to be baptized by you. How can I baptize और you? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दूंगा क्योंकि मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना See, है। baptism is a testimony that my old man was crucified. I finished with my life of sin. और बपतिस्मा ये गवाही देता है कि मैं अपने पुराने मनुष्यत्व में मर चुका हूँ और मैं एक नया मनुष्य हूँ। But Jesus didn't have any old man or sin in his life to repent of. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो है पश्चाताप करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई पुराना मनुष्यत्व या नया मनुष्यत्व उसके अंदर नहीं है, उसने कोई पाप नहीं किया। John the Baptist was baptizing people who had repented. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन लोगों को बपतिस्मा दिया जिन्होंने पश्चाताप किया। The Pharisees came who had not repented. He said, I'm not going to baptize और you. फरीसियों ने पश्चाताप नहीं किया इसलिए उनको बपतिस्मा देने से मना किया। There was absolutely no need for Jesus. He never had to repent of a single thing in his life. और प्रभु यीशु मसीह को भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। So why did he have to be baptized? तो उसको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? I mean, if he had used his human reason, अगर जो हम मनुष्य के तौर से कारण ढूंढे, if Jesus had used his human reason, अगर जो प्रभु यीशु मसीह खुद जो है मनुष्य के तरह सोचने लगता, he would have said, oh, if I stand in that line queue for baptism, people will think I've also got some secret sin that I'm repenting of. हाँ, तो लोग मैं अगर जो उस ऐसे लाइन में खड़ा हो जाऊं तो लोग सोचेंगे कि मेरे अंदर भी कोई पाप है और मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। So maybe I shouldn't stand in that line. इसलिए मुझे वहां पे नहीं खड़ा होना चाहिए, उस कतार में नहीं खड़ा होना चाहिए। You think of that? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? But he couldn't care less what people said about him. और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया लोग क्या कहते हैं। He knew the Father had told him to get baptized. और वो जानता है कि उसके पिता ने कहा है कि बपतिस्मा लेना है। Identify yourself with John the Baptist. और अपने आप को जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान जो है Show your approval of his baptism. और उसका जो बपतिस्मा है उसको हाँ करके Not just with words, but by getting baptized yourself. केवल बोलने से नहीं लेकिन करना है। If people misunderstand you, forget it. अगर जो लोग आपको गलत समझते हैं तो उसको भूल जाएं। You know, if you are concerned about people misunderstanding you, I would tell you right now, better stop serving the Lord. हाँ, अगर जो आप लोगों की चिंता करते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की सेवा छोड़ दें। You cannot serve the Lord and expect everybody to understand you. और आप परमेश्वर की सेवा करें और आप ये नहीं सोच सकते कि सब लोग आपको Because समझने लगे। God's ways are not man's ways. He says that. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का मार्ग नहीं मनुष्य And का the मार्ग। way you do it, people won't understand because God's ways are not man's ways. जब आप कार्य करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि परमेश्वर का मार्ग अलग So है। he told John the Baptist, you got to baptize me because it is only thus that we will fulfill all righteousness. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मुझे बपतिस्मा देना है क्योंकि तभी सब धार्मिकता पूरी होगी। And what was he doing there? और उस समय वो क्या कर Even रहा John था? the Baptist didn't understand. यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी नहीं But समझ it's पाया। clear to us today. It became clear to me और लेकिन मुझे ये साफ सुथरे तरीके से that समझ he में आया। was dying to himself वो अपने आप में जो है मर रहा था and his own will. और अपनी इच्छा को मार रहा And था। symbolically, as John the Baptist put him into the water underneath, और उसी प्रकार जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको पानी में डुबकी दे रहा था, he was saying, I'm willing to let other human beings put me to death. और मैं सहमति देता हूं कि दूसरे लोग भी मुझे मारने के लिए, Not just physically, केवल शारीरिक तौर से नहीं, put me, my soul, to death every day. और मेरा जो प्राण है उसको हर दिन मरने के लिए मैं अनुमति देता I हूं will not resist it. और मैं उसके लिए कोई रोकूंगा नहीं। You know, whenever you're baptized, it's easy for you to resist the fellow trying to put you into the water. जब कोई आपको बपतिस्मा देता है तो बहुत आसान है कि आप उसको रोक सकते हैं, Jesus didn't resist. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने He ऐसा नहीं किया let John push him in, और उसने अनुमति दिया कि यूहन्ना उसको पानी के अंदर डुबोए। symbolizing, और ये एक चिन्ह है, I will let man do whatever they want to me. यानी कि मैं अनुमति दूंगा कि मनुष्य जो कुछ करना चाहे वो कर सकते I हैं मेरे will से, not resist it. और मैं उनको बिल्कुल नहीं रोकूंगा Because I know one thing, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, my Father will raise me up. क्योंकि मेरा पिता मुझे जो है पुनर्जीवित करेगा। When John the Baptist raised him up from the water, it was a symbolic of the Father raising up Jesus. और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको पानी से बाहर निकाला, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसको जीवित करेगा। Do you know that nowhere in the Bible does it say that Jesus raised himself from the dead?
वचन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं को जीवित किया He करते said in John 10, I have power to lay down my life and I have power to raise it again. और यूहन्ना 10 में लिखा है कि मेरे को जीवन देने का और जीवन जो है अपना जीवित करने का शक्ति सामर्थ है मेरे He अंदर, had power to lay it down और जीवन देने and का power to raise it up again. और फिर से पुनर्जीवन करने के लिए, But he- पुनर्जीवित करने के लिए But ताकत he used है। only the first part of it लेकिन केवल पहला हिस्सा उसने to इस्तेमाल किया lay it down. कि जीवन देने के लिए, And he let the Father raise him up. और उसने जो है परमेश्वर को अनुमति दिया कि परमेश्वर उसको जीवित It's करे। always better to let God justify you and prove that you're right instead of you banging the table and proving that you're right to human beings. और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर स्वयं न्याय करे तुम्हारा कि तुम सही हो या नहीं। हालांकि कई बार हम जो है हम खुद कोशिश करते हैं हम सही है करके लोगों के सामने दिखाने के लिए, Very few people have understood this. और बहुत कम लोगों ने इस बात को समझा है। When I was 23 years old, जब आप जो है 23 साल के थे, there was a man of God I respected very much in India. और एक व्यक्ति थे, परमेश्वर के दास थे, जिसका मैं बहुत कद्र करता था, His name was Brother Buck Singh. और उनका नाम है ब्रदर बख्श सिंह। He was the greatest man of God I've ever met in India till today. और भारत देश में जो है सबसे महान व्यक्तियों में से एक था जिनसे मैंने मुलाकात की आज तक। He gave me 3 bits of advice उन्होंने मेरे को जो है 3 ऐसे कारण दिए। when I was 23. उस समय मैं 23 साल का था I've never forgotten it. और मैं आज तक नहीं भूला। He said, one, पहली बात, never in your life make your earthly needs known to anybody but your Father in heaven. आपके जो सांसारिक जो जरूरतें हैं उनको केवल स्वर्गीय पिता से बोले और धरती पे That किसी means को ना बोले। when you're serving the Lord, don't tell people that you need money. और जब आप सेवा टहल करते हैं तो कभी ये ना बोले कि मुझे पैसे की जरूरत है। He followed that his entire life. और उसने इसको पूरे जिंदगी भर वैसा ही किया। All the 60, 70 years he lived as a Christian, he followed that. और करीबन 67 साल तक वो जिया और पूरी जिंदगी ऐसा ही जिया। I've hardly met another man who lived like that all through their Christian ministry. और मैंने आज तक उसके बाद कोई व्यक्ति से बहुत मुश्किल से मुलाकात किया होगा जो इस प्रकार का जीवन जीता है। That's the first thing. और ये पहला। And secondly, he said, live very simply. Don't buy unnecessary things, luxurious things which you don't need. हाँ, और उसने बोला कि बिल्कुल साधारण सा जीवन जियो और ऐसे चीजें ना खरीदो जिसकी आपको जरूरत नहीं है। The third, और he तीसरा, said, if people accuse you and attack you, just keep quiet. अगर जो लोग आपको दोषी ठहराते हैं या आप पर आक्रमण करते हैं तो बिल्कुल शांत रहें Let the Lord answer them. और उनको कोई जवाब ना दे। I have followed that all my life. और मैंने अपने पूरे जीवन भर उसको जो है अपने जीवन में इस्तेमाल किया। I am very thankful that he gave me that advice 50 years ago. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको क्योंकि उन्होंने 50 साल पहले मुझे ये सिखाया। Jesus was like that. यीशु मसीह भी उसी प्रकार थे। See, around that time, I was also seeking for the baptism in the Holy Spirit. Around that same time, 50 years ago. और 50 साल पहले मैं भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का इंतजार कर रहा था। This is what the Lord showed me. When did the Holy Spirit come upon Jesus? और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कब उतरा? When he chose the way of death to himself. जब वो अपने ऊपर जो है मृत्यु को अपने ऊपर स्वीकार किया। Left it to his Father to raise him up. और सब कुछ पिता के हाथ में सौंप दिया कि उसको पुनर्जीवित करें। From that, the Lord spoke to me. और उससे मुझसे परमेश्वर ने बात किया। If you choose that way of brokenness and death to yourself, इसी प्रकार आप भी चुनते हैं टूटना और क्या कहते हैं मृत्यु को, my spirit will be upon you तब मेरी आत्मा तुझ पर till उतरेगी the end of your life. तेरे जीवन के अंत तक। But if someday in your life you feel that there is a better way to go, अगर जो आपको किसी समय में ऐसा लगे कि इससे भी कुछ बेहतर मार्ग है and you move away from the way of death to self, और मृत्यु से अलग एक रास्ता को तुम चुनोगे तो my power will depart from you. तो मेरी सामर्थ तुझसे दूर हो जाएगी। I don't know whether you value the anointing and power of God. मैं जानता नहीं कि तुम इस परमेश्वर के सामर्थ का मूल्य देते हो या नहीं। I've experienced it in my life and seen the results of it in my ministry so much. और मैंने जो है अपने सेवकाई में इसका प्रतिफल देखा है या परिणाम देखा है। I've seen the results of it in my own family and my children. और मैं अपने परिवार में और बच्चों के जीवन में भी इसका परिणाम देख रहा हूँ। That believe me when I say this. और विश्वास करें जब मैं ये कह There रहा हूँ। are many times I wept before God and said to him like this. और कई बार मैंने परमेश्वर के सामने रोया और कहा, Lord,
whatever you take away from me, don't take the anointing of the Spirit from me. कि परमेश्वर जो कुछ तुझे मेरे से लेना है तू छीन ले, लेकिन कभी भी अपना अभिषेक You मुझसे मत छीनना। can take away all my money, I don't care. अगर जो तू मेरा सारा पैसा ले लेता उससे कोई फर्क नहीं Take पड़ेगा, away my reputation with men. और जो मान सम्मान है लोगों के बीच में सब ले ले, Take away my health. और मेरा जो ताकत है You उसको can ले even ले, take away my ministry. और तू मेरा सेवकाई को छीनना है तो And वो भी let ले the ले, whole world turn against me. और पूरा संसार मेरे विरोध में उठ I जाए, कोई बात only नहीं। want the Holy Spirit to rest upon me all the time. लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरा पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ बना रहे। God's been very good to me. और परमेश्वर बहुत भला था, He's given me more than I expected, even when I see my children now serving the Lord and planting churches. लेकिन जितना मैंने मांगा उससे अधिक उसने दिया, और आज मैं बहुत ही खुश हूं कि मेरे बच्चे भी जो है परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, never justify yourself. कभी भी अपना न्याय ना करें, Never fight for yourself. और अपने लिए कभी भी युद्ध ना Let करें। God fight for you. परमेश्वर को अनुमति दे कि वो तुम्हारे लिए युद्ध करे, Do everything as the Lord has commanded. और हर एक आज्ञा जो परमेश्वर देता है वैसा का वैसा करे। And thus, like it says, Moses finished his work, you finish your life on earth like that. और जैसे कि मूसा ने अपना सारा काम समाप्त किया करके लिखा है, वैसे ही आप अपने इस जीवन का समाप्त करें। So in everything, I've decided I want to do it like it's written here, just as the Lord commanded. और जैसे यहाँ पे लिखा है कि जैसे यहोवा परमेश्वर ने कहा वैसा का वैसा किया, वैसे ही मैं भी करना चाहता I हूँ। want it to be written about 500,000 times in my life that Zach Bonin did it just as the Lord commanded. और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 5000 बार मेरे बारे में ऐसे लिखे कि जैक पोनन ने वैसा का वैसा किया जो यहोवा परमेश्वर ने कहा। Will that be written about your life? क्या आपके जीवन में भी वैसा लिखा In जाएगा? this matter, in this matter, in this matter, in this matter, in 500 matters, he did just as the Lord commanded. कि 5000 विषयों में, उन सब विषयों में आपने जैसे यहोवा परमेश्वर ने कहा वैसा का वैसा किया है। What is the result of it? इसका परिणाम क्या See होगा? the next verse, Exodus 40 verse 34. और 40 उसका जो है 24 देखेंगे, The glory of the Lord came and filled the tabernacle. और देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू के ऊपर परमेश्वर का जो महिमा है उतरी। And again in 35, the glory of the Lord filled the tabernacle. और देखते हैं कि तंबू के ऊपर परमेश्वर का तेज उतरा करके And in 35 में भी verse लिखा है। 38, in all their journeys, the cloud was on the tabernacle and the fire was on the tabernacle. और फिर लिखा है कि सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल और रात को आग का खंभा दिखाई देता था। That's the anointing and power of the Holy Spirit. और यही परमेश्वर का जो है अभिषेक है। I'll say, Lord, I know when I've done everything according to the Lord's command. और मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ मैं जानता हूँ। The glory and the fire of God will be upon my life. और परमेश्वर की आग मेरे ऊपर रहती है। I experienced it when I was 24 and I experience it now when I'm और 75. जब मैं 24 साल का था और आज मैं 75 साल का हूँ, वही चीज अनुभव करता हूँ। Lord, I never want to be a cold Christian ever in my life. और मैं कभी भी एक कहलाने वाला मसीह नहीं बनना चाहता हूँ। Even if I live to be 100 years old, अगर जो मैं 100 साल और जीऊँ तो भी। I want the cloud of the baptism and the fire of God upon my life. और मैं चाहता हूँ कि वो आग का जो बपतिस्मा है मेरे ऊपर बना रहे। Everything else I can give up. और सब कुछ मैं लुटा सकता हूँ। There is no partiality with God. और परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। All are the same to Him. और सब उसके नजर में एक समान है। I'm a favorite son of God. और मैं परमेश्वर का एक प्रिय पुत्र हूँ। You're a favorite son of God too. और आप भी परमेश्वर के प्रियजन हो। A favorite daughter of God. और आप प्रिय बेटी हो परमेश्वर के। There's no special child God has. और परमेश्वर के पास कोई विशेष कोई संतान नहीं है। Compared to God, I'm an evil father. और परमेश्वर के पिता के नजर में जो है मैं एक दुष्ट पिता हूँ। Jesus said that you evil fathers know how to give good gifts to your children. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुष्ट पिता जानते हैं कि किस प्रकार से अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना है। What he was saying there was the best of you fathers are evil compared to God. इसका मतलब यह है कि जो इस संसार में सबसे बेहतरीन जो पिता है वो भी परमेश्वर के सामने दुष्ट हैं। As a father, I have been absolutely impartial to my 4 sons. और पिता होने के नाते मैंने अपने चारों बच्चों को एक समान देखा है, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। I never did more for one that I didn't do for the other. और मैंने कभी एक बेटे के लिए ज्यादा और दूसरे के लिए कम ऐसा नहीं किया। No son of mine is my favorite. और कोई भी मेरे पुत्र जो है कोई भी विशेष नहीं है। Many parents have favorite sons. और कई माता पिताओं के जो है विशेष पुत्र या संतान रहते हैं। Usually the eldest or the youngest. या तो बड़ा वाला या छोटा वाला। Or if there's one girl, that will be the favorite one. या एक लड़की है तो वो सबसे प्रिय होगी। Or only one son, that will be the favorite one. या एक पुत्र होगा तो वो सबसे विशेष We होगा। are all evil.
वो हम सब जो है दुष्ट हैं। There's little bit of evil in a lot of people like that. If you show partiality, I'd say you're an evil parent. अगर जो आपके अंदर भेदभाव है, इसका मतलब आप दुष्ट पिता हैं। If you want to be a good parent, you must be absolutely impartial. अगर जो आप एक अच्छा माता पिता बनना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भेदभाव नहीं करना। I'm 100% against giving dowry or taking dowry. और दहेज देना और लेना, इनके बिल्कुल मैं विरोधी हूँ। I never took it when I got married. I never allowed my sons to take it. और मैंने कभी जब शादी किया उस समय कोई मैंने दहेज नहीं लिया और मैंने अपने पुत्रों के लिए भी कभी दहेज नहीं मांगा। All the marriages I've conducted in my church, I get a certificate from bride and bridegroom. There's no dowry given here. और वहाँ पे मैंने अपने कलीसिया के अंदर शादी किया उन चारों का, और मैंने सर्टिफिकेट में लिखा कि कोई भी मैंने दहेज नहीं I लिया। say, if you want to give dowry, go and get married in some other church, not in our church. अगर जो किसी को दहेज चाहिए तो मेरी कलीसिया में नहीं, किसी और के कलीसिया में जाके I शादी said, it's करो। even against the law of the country, and we're going to obey the laws of the country. और हमें जो है हमारे देश का हुक्म का पालन करना है। So, we have been very careful in obeying everything in these areas. और देखते हैं कि हम हर चीज का पालन करने के लिए बहुत But ध्यान at देते the हैं। same time, I say, if you have a daughter, you must give her an equal share along with your sons. हाँ, अगर जो आपका कोई पुत्री है, बेटी है, तो आपको अपने जायदाद का हिस्सेदार, उसको बराबरी का हिस्सा देना है। Definitely. बिल्कुल वैसा का वैसा देना है। So, there's no partiality. I've tried my level best to live without partiality for my 4 sons. और मैं जो है बहुत कोशिश करता हूँ कि बगैर भेदभाव के जो है अपने बच्चों के साथ। From that, I learned one lesson. इससे मैंने एक चीज सीखा, God is a million times better father than me. तो परमेश्वर कई गुना, सैकड़ों समय गुना There बेहतर है is मुझसे, no partiality with him. और वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। Many of you parents are like that. और आप में से कई माता पिता भी इसी प्रकार हैं। Supposing one of your children is very obedient, मान लीजिएगा कि आपका कोई संतान है, वो बहुत ही आज्ञाकारी है, one is very mischievous. और दूसरा है बहुत नटखट है। Do you give the ice cream only to the obedient child? क्या आप आइसक्रीम केवल उसी को देंगे जो आपकी आज्ञा पालन करते हैं? Then you're one of the worst fathers. तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप सबसे दुष्ट पिता होंगे। No, we serve equally at the table. हाँ, हमें मेज पे दोनों को बराबर देना Even है। if one is not so clever, हो सकता है कि एक इतना or चतुर ना one is a हो, little more naughty than the others. हो सकता है दूसरा जो है थोड़ा नटखट हो। God is like that. परमेश्वर भी उसी समान है, There's no partiality with him. वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। What he did for one, he'll do for another, वो एक के लिए जो करता है वो दूसरे के लिए भी वैसा ही करता है, provided you fulfill the conditions. केवल जो उसने जो दिए हुए हैं उनको मानना है। For example, God has some laws. परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी हैं। It says God resists the proud, but he gives grace to the humble. यानी कि परमेश्वर जो घमंडी है उनसे नफरत करता है, और जो हलीम है उनको परमेश्वर अनुग्रह करता We है। saw that yesterday in James 4:6. और हमने वो याकूब की किताब में 4:6 में पढ़ा। So that God cannot change. That's like asking him to change his nature. यानी कि उससे परमेश्वर बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि So, उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आ Even सकता। though you may be a favorite son of his, हो सकता है कि आप उसके प्रिय पुत्र हो, if you become proud, he will oppose you. अगर जो आपके अंदर अहंकार आता है तो वो आपका विरोध करेगा। Not because he hates you, इसलिए नहीं कि वो आपसे नफरत but करता है, that's his nature. लेकिन वो उसका स्वभाव है। It's like even the righteous father. इसीलिए वो धर्मी पिता करके कहा गया है। If you go and tell a lie, अगर जो आप उसके सामने जाके एक झूठ or बोलते हैं, you in some transaction on earth, you tell a lie, अगर जो यहाँ पे कुछ आपने लेन देन किया और आप झूठ बोलते or हैं you cheat somebody, और किसी को धोखा देते हैं, and you're taken to court और आपको न्यायालय में because लेकर you're गए, caught, और वहाँ पे न्यायालय में लेके गए, God's not going to protect you and say, no, he's okay, he didn't do anything wrong. तो परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा कि नहीं इसने कोई गलती नहीं किया करके। There's a word in 1 John 2 which says Jesus Christ is our advocate. और पहला यूना की किताब में 2 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर हमारा, Jesus, यीशु मसीह हमारा जो है वकील है करके। 1 John 2 verse 1. पहला यूना 2:1 We have an advocate with the Father. कि पिता के सामने हमारा एक वकील That है, is Jesus Christ. वो है प्रभु यीशु But मसीह। notice carefully what it says here. यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है। He's very different from all the lawyers in the world. और वो जितने भी वकील है इस संसार के, उन सब से बिल्कुल भिन्न है। I told you about a court case that we were taken to some years ago. और मैंने आपको एक कोर्ट केस के बारे में बताया था जो कई साल पहले मेरे से हुआ था, We'd never been to court in our life. और उससे पहले हम कभी कोर्ट में नहीं, So न्यायालय we में had नहीं to look गए, around for a lawyer. He never had any lawyer. और हमने जो है कभी लॉयर को, जो है वकील को ढूंढा, वो भी नहीं मिला। Believe it or not, every lawyer we went to said, we'll take your case if you tell lies.
और उन्होंने कहा कि हम आपका केस लेंगे लेकिन आपको झूठ बोलना पड़ेगा। I said, sorry, we're not going to tell any lies. तो मैंने कहा कि माफ करना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, Not even one lie. I'm a Christian. और मैं एक मसीह हूं, मैं एक भी झूठ नहीं बोलना पसंद Then करूंगा। finally we found one person who agreed. और आखिर में हमने एक वकील को पाया, वो सहमत हो गया करने के लिए। Jesus Christ is the righteous, it says here. वहां 1 पे John लिखा है 2 कि verse 1. पहला यूहन्ना 2:1 में लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह धार्मिक है करके। He's a righteous advocate. वो धार्मिक जो है वकील है So he करके। won't tell a lie on your behalf. वो आपके पक्ष में रह के झूठ नहीं And बोल he will सकता, not tell you to tell a lie to cover up something. और वो ये भी आपको नहीं बताएगा कि झूठ बोले कि कुछ चीजों को छुपाने के So लिए। he's not like some earthly father saying, yeah, let's cover that up. और वो कोई स्वर्गीय पिता को, धरती के पिता की तरह नहीं है कि बोले कि झूठ He's बोलो। a righteous advocate. नहीं, वो धार्मिक है, He'll support you, but he's the truth. वो आपकी मदद करेगा, लेकिन वो सच्चाई के पक्ष में रहेगा, He'll forgive us, वो हमें माफ करेगा, but he may allow us to reap what we have sown. लेकिन वो उस चीज के लिए अनुमति देगा कि जो हमने बोया है वही काटे। If a child of God goes to a prostitute, he may get AIDS. अगर जो कोई परमेश्वर का जन या संतान जो है कोई वेश्या के पास जाता है तो उसको एड्स हो सकता है। God won't stop him from getting it. हाँ, परमेश्वर उसको, He won't stop him from getting that sickness. हाँ, वो नहीं रोकेगा उस बीमारी को पाने से। So don't think God, Jesus is like unrighteous advocate, just overlooks everything, all the wrong things you did. हाँ, तो ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर एक ऐसा वकील है जो सब कुछ जो है छुपाने की कोशिश करेगा। I've seen believers I've seen people who got AIDS who got converted और after getting AIDS. और मैंने लोगों को देखा है एड्स की बीमारी होने के बाद वो परमेश्वर में आ गए हैं And their sins were forgiven. और उनके सारे पाप They क्षमा हो became गए children of God. और वो परमेश्वर के संतान बन But गए, they died of AIDS. लेकिन वो बीमारी से ही मर गए। You have to reap what you sow. आप जो बोते हैं उसे काटना पड़ता है, That God is like that. You reap what you sow. और परमेश्वर वैसा ही है, आप जो He's बोते a हैं वही righteous, काटते हैं, he's a righteous advocate. क्योंकि वो धार्मिक है, But he will, there's no partiality with him. लेकिन और वो कोई भेदभाव नहीं So करता। if you fulfill the conditions, he will do everything for you that he even did for Jesus और Christ. उसकी सारी व्यवस्थाओं का आज्ञा पालन करेंगे, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वैसे ही वो हमारे लिए भी करेगा। That is one of the great truths I discovered, that Jesus Christ is my elder brother. और यही सबसे बड़ा सच्चाई मैंने जो है खोज किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। You read in Romans 8 and verse 29. रोमियो 8 उसका 29 पढ़ेंगे। Romans 8:29. 8 उसका 29, That God has predestined us to be conformed to the image of Jesus Christ. क्योंकि जिसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। He's the first among many brothers. वो सभी भाइयों में सबसे बड़ा यानी कि पहलौठा है। So that Jesus is called my elder brother. इसीलिए हम जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना बड़ा भाई And मानते हैं। because God has made him our elder brother, it says here, he has destined that I become like him. और क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई होने के कारण इसलिए परमेश्वर ने चुना है कि हम भी उसके स्वरूप में बने। Predestined means a destination, it's very clear in English, determined beforehand. यह पहले से जान लिया है, इसका अर्थ है कि पहले से ही परमेश्वर ने निश्चय कर लिया है कि ऐसा होगा What करके। is after? पहले से जान लिया, उसके बाद लिखा। पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी। ठहराया भी, that means in English it's a destined to be like that. हाँ, इसका मतलब पहले से ठहराया है। That means it's like you get a ticket, a train ticket from Bombay to Calcutta. इसका मतलब यह है कि पहले से ही जो टिकट हो गया कि बॉम्बे से कलकत्ता That's के लिए, printed on your ticket. और वो आपके टिकट में छपा हुआ So है। you go to the station and go for the train that's going to Calcutta. और आप स्टेशन में जाएं और जो ट्रेन में चढ़ना है And वहाँ पे then बैठे। if you're in the right train, you'll be getting closer and closer to Calcutta every hour. और आप अगर जो सही ट्रेन में बैठे हैं तो जैसे ही समय बीतता जाएगा आप कलकत्ता So के नजदीक होते जाएंगे। God's given me a ticket when I was born again. और जैसे ही मैं परमेश्वर को स्वीकार किया उसी समय परमेश्वर ने एक टिकट दिया है। Not heaven, स्वर्ग नहीं, not from earth to heaven. धरती से स्वर्ग के लिए नहीं, No. नहीं, From my sinful Adamic nature to becoming like Jesus Christ and his मेरे nature. पापमय जीवन से प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप बनने का एक टिकट, That is the journey. और वही सफर है। You need to understand that. और आपको ये समझना है, It will change your life like it changed mine.
और जैसा मेरा जीवन बदला वैसे आपका जीवन भी बदल I जाएगा। say, Lord, thank you for showing me what destination is written on my ticket. और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर धन्यवाद कि जो आपने मेरे लिए ठहराया है वो दिखाने के लिए। So many years I thought it was heaven और कई सालों तक मैंने सोचा ये स्वर्ग है and live casually on earth. और मैंने साधारण तौर से जिया Sin, get up, sin, get up, sin, get up. और गिरो पाप करो उसके बाद उठो, फिर पाप करो फिर उठो, Ask for forgiveness, keep on committing the same sins. और उसके बाद माफी मांगो, फिर वापस वही पाप करो, ऐसे Till दोहराता I गया। discovered my destination was from my sinful nature to the nature of Jesus Christ. जब तक मैंने ये समझा नहीं कि क्या कहते हैं परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ है यानी कि पापमय जीवन से प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप होना। Just like I don't reach Calcutta in 1 minute, I don't reach that destination in a day. जिस प्रकार से मुंबई से कलकत्ता एक ही मिनट में नहीं पहुंच जाते, वैसा ही हमें समय लगता है। So there's a journey slowly from my sinful nature to completely like the nature of Jesus Christ. तो ये एक सफर है जो कि बहुत धीमा है और जैसा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके स्वरूप बनने तक हमें सफर करते How do रहना। I know I'm in the right train? और मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं सही ट्रेन में If हूँ? I'm going further away and further from Calcutta, then I'm not in the right train. अगर जो मैं कलकत्ता से दूर होता जा रहा हूँ इसका मतलब मैं सही ट्रेन में नहीं हूँ। Or every day if I'm stuck in Bombay station, then something's wrong. That's not the right train. अगर जो हर दिन मैं बम्बई स्टेशन में ही रुका हुआ हूँ तो मैं सही ट्रेन में नहीं हूँ। So if I'm still defeated by the same old sins I was 10 years ago, then I'm stuck in the starting station. That's a wrong train, brother. अगर जो 10 साल पहले जहाँ पे था वहीं पे मैं अभी भी अटका हुआ हूँ, इसका मतलब मैं सही ट्रेन पे नहीं हूँ। Because if I'm on the right track, year by year by year, I'm becoming more like Jesus Christ. अगर जो मैं सही मार्ग में चल रहा हूँ तो हर साल जैसे साल बीतता जा रहा है मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप बनता It जाऊंगा। may be many lakhs of miles to the destination, हो सकता है कि कई लाखों किलोमीटर का जो है सफर करना I'll be पड़े, getting closer. लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के समीप I आता will not रहूंगा। be defeated by the same old sins I was defeated by 10 years ago. और 10 साल पहले जो पाप से मैं पराजित होता था वो अब मैं उससे नहीं But हूँ। here's the worst part of it. लेकिन बहुत बुरा खबर भी ये Some है, believers, कुछ विश्वासी the लोग time they are born again, जैसे ही वो they विश्वास में give आते up many हैं sins. और उन्होंने कई पाप किया है, 10 years later, 10 साल के बाद they are doing things they didn't do 10 years ago. और 10 साल पहले जो नहीं किया था वो अब करने लगे हैं। You gave up pornography when you were born again, but you're now into it again. और पहले जब आप पश्चाताप किया उस समय छोड़ चुके थे, उसके बाद वापस उसी में आ गए। Things like pornography, sexual sin. और जैसे कि अश्लील तस्वीरें देखना, And so then you're going backwards. तो आप पीछे की ओर खिसक रहे हैं। You were better off when you were converted. Instead of going forward, you're going backwards. और जब आप मन फिराए थे उस समय से भी बुरे अवस्था में अभी पहुंच गए हो। You must see your destination. और आपको अपना जो ठहराया And हुआ the Holy Spirit is the power to help you to reach that और destination. पवित्र आत्मा वो सहायता देगा कि आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप बनने That के is लिए। the primary purpose of the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। I'll give you the one verse that most clearly describes in the whole Bible the ministry of the Holy Spirit. और एक ऐसा वचन मैं आपको बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है वो पूरी अच्छे संक्षिप्त तौर से समझाया गया है। Like Moses saw the cloud and the fire on top of the tabernacle. जैसे मूसा ने जो है तंबू के ऊपर परमेश्वर के अग्नि को देखा, This is how you can know the fire of God is upon your life. इसी प्रकार इसी समान आप भी समझ सकते हैं परमेश्वर के आग आपके ऊपर है या नहीं। What that symbolized was the power of the Holy Spirit. और वही चिन्ह है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ का। 2 Corinthians chapter 3, दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय verse 18. उसका 18। It says here that without a veil we look at a mirror. और Verse 18. यहाँ पे लिखा है कि बगैर पर्दे के हम देख सकते हैं करके। In a mirror. हाँ, जो शीशा होता है, That is a picture of the Word of God. और ये है परमेश्वर का वचन। So there's no veil. The veil is referring to the law in the Old Testament. और यहाँ पे जो पर्दा है वो परमेश्वर के आज्ञाओं के व्यवस्था को You दिखाता read है। that in the previous verses, और उससे पहले वचनों में लिखा हुआ है, especially verse 14. खास करके 14 में। But it says this law is gone now. अब हम देखते हैं कि वो जो नियम है वो Now हटा लिया when गया I है। look, you see in the Old Testament when I looked at God's word, I saw the law. जब मैं पुराने नियम में देखता हूँ तो परमेश्वर की व्यवस्था नजर आती है। Now that's gone. अब वो चला गया है। Now when I look at the word of God, लेकिन जब अब मैं वचन की ओर देखता I हूँ, see the glory of the Lord Jesus. अब मैं देखता हूँ प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप को। If you're still seeing rules and regulations and thou shalt not,
you have not understood the New Testament. अगर जो अभी भी अगर जो आपको जो कानून आपको नजर आता है या परमेश्वर की व्यवस्था नजर आते हैं, इसका मतलब आप नए नियम में नहीं हो। So many churches are like that. और बहुत सारी कलीसियां इसी प्रकार है। Preacher gets up with a new set of laws. Thou shalt not, thou shalt not. वहाँ पे प्रचारक जो है नए नए कानूनों के साथ जो है नए नए व्यवस्थाओं के साथ खड़े हो They जाते may हैं। not be the same 10 commandments Moses gave, और वो 10 हुक्म जो मूसा ने दिए वो नहीं, but new commandments. लेकिन नए नए कानून। Even Moses never gave in the 10 commandments, thou shalt pay thy tithe. हाँ, हो सकता है कि मूसा ने भी ऐसा कानून नहीं बनाया होगा कि टाइट देना है करके। You know, that's not one of the 10 commandments. आप लोग जानते हैं कि वो 10 हुक्मों में नहीं है, It's one of the main commandments for pastors today. लेकिन आज पासवानों का जो है मेन व्यवस्था वही This है। law has gone. और जो व्यवस्था है वो जा There is चुका है। no thou shalt not in the new covenant. और नए व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। I see the glory of Jesus in scripture. और मैं अब परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप देखता No हूँ। laws. अब कोई व्यवस्था If नहीं। you see laws, then the veil is there. You won't understand अगर जो आप scripture. व्यवस्था को देखते हैं तो अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। He says the veil is taken away. और कहते हैं कि पर्दा हट गया है। When we turn to the Lord, verse 16, the veil is taken away. और 16 में देखते हैं कि वो पर्दा जो है उठा लिया गया And the है। Lord is the Spirit, verse 17. और 17 में लिखा है कि अब So- प्रभु तो आत्मा है। If I read the Bible without the Holy Spirit, there's a veil there. अगर जो आज मैं बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ के वचन पढ़ता हूँ तो वहाँ पे पर्दा it's पड़ा है। like putting a cloth over the Bible and trying to read it. इसका मतलब ये है कि कोई कपड़ा मैंने वचन के ऊपर डाला है और मैं पढ़ने की कोशिश कर No रहा हूँ, wonder you don't understand it. और ऐसे में नहीं समझ में आएगा। And no wonder you get so many wrong doctrines from it. और उसमें से गलत सिद्धांत लोगों को मिलेगा। Get rid of that veil. और उस पर्दे को हटाएं। How? और अब How? When you turn to the Lord, it's taken away, it says. और जब आप परमेश्वर की ओर फिरोगे तो ये पर्दा That हट means you जाएगा। say, Holy Spirit of God, open my blind eyes. और हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंधे आंखों And को खोल then, दिया। what do I see? और उसके बाद मुझे क्या नजर आएगा? The glory of Jesus Christ, the Holy Spirit shows me. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप को पवित्र आत्मा दिखाएगा। So many wonderful things as I've seen in Scripture, the glory of Jesus. और बहुत सारे खूबसूरत बातें मैंने इस पवित्र कलाम में देखा है जो कि प्रभु यीशु मसीह के He तेजस्वी रूप shows को me, दिखाता है। this is your destination, He shows me. और वो बताता है कि यही तुम्हारा लक्ष्य He है। gives me a glimpse of my destination, not heaven, but the glory of Jesus. और वो मुझे अपना लक्ष्य यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप मुझे दिखाता I है। don't want to see heaven. और मुझे स्वर्ग नहीं देखना, I have no interest in that. और उसमें मेरे को कोई खास रुचि नहीं I है, want to see the glory of Jesus because that is my destination. क्योंकि मेरा लक्ष्य यह है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप देखना है। I mean, if you're going to Calcutta to see your husband or your beloved husband or wife, you're not worried about the glories of Calcutta. You're going to meet your husband or wife. अगर जो आप कलकत्ता में जा रहे हैं अपने प्रिय पति या पत्नी से मिलने के लिए, तो आप उस कलकत्ता के तेजस्वी के बारे में नहीं चिंता करेंगे, लेकिन आप अपने पति पत्नी के बारे में सोचेंगे। That's how I'm living my Christian life. और इसी प्रकार मैं अपना मसीह जीवन जीता But when हूँ। I see the glory of Jesus, जब मैं प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप देखता हूँ, like when Isaiah saw the glory of God, he said, "Oh God, I'm such a sinful man." और जैसे यशायाह नबी ने कहा प्रभु परमेश्वर का तेजस्वी रूप को, तब उसने कहा कि मैं कितना जो है दुष्ट व्यक्ति हूँ, So पापी व्यक्ति हूँ। when I see the glory of Jesus in Scripture, जब मैं प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप देखता हूँ I इस वचन see में, my tremendous need, how unlike Christ I am. और तब मुझे समझ में आता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से कितना रूप में मेरा दूरी है करके, या बिगड़ा हुआ रूप है। God is my witness that I see that every day. और प्रभु परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं हर रोज उस चीज को देखता हूँ, महसूस करता हूँ। How beautiful Jesus is. और कितना खूबसूरत है हमारा How प्रभु यीशु, glorious He is. How glorious He और is. कितना महिमा भरे तेजस्वी है वो। And I see my need. और मुझे महसूस होता है मेरी जरूरतों, Some new area, I am unlike Him. और कई ऐसे स्थान है जहाँ पे मैं प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं हूँ, That would discourage me. और वो मुझे निराश करता है। But it doesn't. लेकिन नहीं, Because it says in the next sentence क्योंकि उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, that He is going to change me into that glory. That's the other ministry of the Holy Spirit. और वहां पे लिखा है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते Not हैं, in one moment, एक ही क्षण में नहीं। but it says here from glory to glory to glory to glory to glory to glory. इसका मतलब ये कि तेजस्वी रूप से तेजस्वी रूप की ओर ऐसे धीरे धीरे अंश अंश It's करके like बदलते हैं, 1 mile at a time towards Calcutta. यानी कि कलकत्ता की ओर एक एक माइल करके हम आगे So बढ़ रहे हैं, glory to glory to glory to glory, becoming more and more like Christ. यानी कि महिमा से महिमा, महिमा से महिमा
महिमा करते हुए ऐसे तेजस्वी रूप में बदलते हैं। This is what I've preached for 40 years. और यही 14 साल से मैं प्रचार कर रहा Because हूँ it changed my life 40 years ago. और 14 साल पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। When I saw my destination was not heaven but to become जब मैं समझने लगा कि मेरा जो लक्ष्य है वो स्वर्ग नहीं। And if I'm not becoming like Christ every year, then I'm on the wrong train. अगर जो मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं बदल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं गलत पटरी पर हूँ। That means I'm in the wrong church. इसका मतलब मैं गलत कलीसिया में हूँ। If your church is not helping you to become more like Jesus every year, my brother, sister, I'm not here to criticize your church, but you're in the wrong church. तो अगर जो आपकी कलीसिया आपकी मदद नहीं कर पा रही है आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आप गलत कलीसिया में You हैं। better find one pretty quickly that'll help you to become like Christ every year. और मैं एक और वचन बताना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के समान आपको बनने में मदद Find करेगा। a church like that वैसा एक कलीसिया आप ढूंढे that'll lead you to become more like Christ. जो आपकी मदद करे प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के Not लिए। that'll help you to do more evangelism. वो कलीसिया नहीं जहाँ पे आप ज्यादा सुसमाचार प्रचार It's कर no सकते use हैं। doing more evangelism if you're not becoming like Christ. और अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बनते हैं तो सुसमाचार की मनादी करके कोई फायदा नहीं। Jesus wants you to love Him and be like Him. That's more important. और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के समान बने। We need to have priorities in our life. और हमें कई चीजों के लिए मुख्य स्थान देना जरूरी है। What do you send your children to school for? आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? Supposing your child comes home one day and says this to you from Agar- school. Your child comes back from school one day और आपका बच्चा जो है स्कूल से वापस आकर लौटकर ऐसा and कहता है says, आपसे Mom, I played marbles today and I won 20 marbles. कि मैंने आज स्कूल में कंचे खेले और मुझे 20 और कंचे की जरूरत है। And she said, what do you get in mathematics? तो बोल गया कि गणित का क्या हाल है? I got about 5%. केवल 5% अंक But I मिले। got 20 marbles. लेकिन मुझे जो है 20 कंचे चाहिए। What will you tell him? तो आप उससे क्या कहेंगे? Great, my son, get more marbles tomorrow. हाँ तो अरे बहुत अच्छा किया, कल जो है 20 और कंचे लेकर आओ। There's nothing wrong with playing marbles. I also used to play it in my school days. हाँ कंचे खेलना कोई गलत बात नहीं है, मैं भी अपने स्कूल में खेलता था। But I didn't go to school to learn to play marbles. लेकिन मैं स्कूल में कंचे खेलने नहीं जाता था। What do you send your children to school for? आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? Jesus has not left us on earth to do a lot of work for Him. प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में इसलिए नहीं छोड़ा कि हम बहुत सारे कार्य करें, Become like Him. हमें इसलिए छोड़ के गया कि हम उसके स्वरूप में बने। As we become like Him, our life will overflow in service that will make other people like Him. और जब हम उसके स्वरूप में बनते हैं तो वो हमारे जीवन को इतना भर देता है कि वो हमारे जीवन से उमड़ने लगता है और हम दूसरों को भी मदद करते हैं कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के समान बने। Proverbs 4:18. नीति वचन 4 उसका 18 देखेंगे। Proverbs 4:18. नीति वचन 4 उसका 18। The path of a righteous man, यहाँ पे देखिएगा जो धर्मी व्यक्ति के मार्ग, and if you're justified by Christ, you're righteous. अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका न्याय हो गया तो इसका मतलब आप जो है एक धर्मी व्यक्ति हैं। So here's the path God has planned for you. देखिएगा जो मार्ग प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, Like the sunrise at the light of dawn, जैसे कि चाल से चमकती हुई ज्योति के समान है, that is the sun rising in the sky. यानी कि सूर्य जब उदय होता है और चमकता है। It's very clear in English, it's the light of sunrise. यहाँ पे अंग्रेजी में जैसे कि सुबह यानी कि उदयाचल में जब And it सूर्य gets- उगता है, Rises more and more and more and more until the perfect day, that is when Christ comes back. और वो चमकता जाता है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट ना हो। So if I'm going on the right track, अगर जो मैं सही मार्ग पर हूँ, my light won't become perfect in one day, मेरा जीवन जो है एक ही दिन में but सिद्ध नहीं हो it'll जाएगा। get brighter, brighter, brighter and brighter. वो जो है और उसका तेज या चमकना बढ़ता जाता है। Like the sun, जैसे कि becoming, सूरज making का the होता day है। brighter and brighter and brighter till it reaches overhead. जैसे कि उदयाचल से वो उदय होता है और उसके बाद वो तेज रोशनी देने लगता That is है, the path of the righteous. और यही धर्मी का मार्ग है। This is exactly what we read in 2 Corinthians, what we read just now in 2 Corinthians 3:18. और वही दूसरे करंथियों 3 उसके 18 में जो हमने पढ़ा, The Holy Spirit
जो पवित्र आत्मा है, leading us from glory to glory to glory to glory, तो पवित्र आत्मा हमें महिमा से महिमा महिमा से महिमा में लेके transforming us जाएगा into the likeness of Christ. जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ना बन And जाए, since He's our elder brother, क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है whatever God did for Jesus, He'll do for us. और जो कुछ उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वो सब हमारे लिए भी If करेगा we fulfill the same conditions. अगर जो आप उन सब चीजों को पूरा करते हैं। What is the main condition Jesus fulfilled? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या चीज पूरा किया, पूर्ण किया? There were many things He did on earth. उसने धरती पे बहुत सारे कार्य किया। He healed the sick, He raised the dead. उसने जो है बीमार लोगों को चंगा किया So और many मरे हुओं things, को। when many people think of the life of Christ, that's what they think of. और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो ध्यान देते हैं तो वो यही सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगा ही दिया, He walked on the water. कि वो पानी में चला, He fed 5,000 with 5 उसने loaves. 5,000 लोगों को 5 रोटी से खिलाया He healed the sick. और उसने बीमार He लोगों को opened चंगा blind किया eyes. He opened blind eyes. और उसने अंधे लोगों की I आंखों को want to खोला। be like Jesus. और मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनना And चाहता what हूँ। are you seeking? और आप क्या ढूंढ रहे हैं? Your own honor. आप अपना सम्मान ढूंढ रहे हैं। You want to be known as the great healer who opened blind eyes and raised the dead. आप जो है वैसा महान व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसने अंधे लोगों को आंखें दी और मरे हुओं को जिंदा किया। Let me show you the real glory of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह की असली महिमा का रूप दिखाना चाहता हूँ। Turn with me to Philippians 2, फिलिपियों की खत उसमें दूसरा अध्याय है, verse 5. उसका 5वां वचन। It says in verse 5, have this attitude in yourself which was in Christ Jesus. यहाँ लिखा हुआ कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। What is that? इसका अर्थ क्या है? That's beautiful, this in Hindi, स्वभाव. यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है स्वभाव। Our attitude and conduct and behavior. हमारा जो चाल चलन, हमारा जो क्रिया है, जो भी हम काम करते हैं, सोच है, वो सब How we behave. हम दूसरों के सामने That किस is प्रकार our से स्वभाव. वो स्वभाव दिखाते हैं। What is it? Not how we raise the dead. ये नहीं कि मरे हुओं को जिंदा करना। What is he talking about in verse 6 to 8? और 6 से लेकर 8 में वो क्या कह रहा He's है? talking about the attitude of Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का जो सोच है उसके बारे में बता रहा है। Listen carefully. यहाँ पे ध्यान Please दें, follow with me. यहाँ पे ध्यान दें। Verse 6 first of all. और 6 में पढ़े, He was God, वो परमेश्वर के स्वरूप, ruler of the universe, वो पूरे ब्रह्मांड का existing from eternity, और वो अनादिकाल से है with the Father and the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा और पिता के साथ, and he humbles himself and becomes a man. और वो बिल्कुल अपने आप को इतना हलीम किया और वो इंसान बना। That's the first thing. पहली बात। Before we go to walking on the water and all that, और हम पानी में चलने से पहले हमें इस चीज को ध्यान देना है, he became a man. वो एक मनुष्य बना। Second step. दूसरा कदम, When he became a man, जब वो verse 7, he didn't just become an ordinary man, he could have been a king. He became a slave. और जो वो मनुष्य के समान हुआ तो वो राजा होकर वगैरह नहीं आया, लेकिन एक दास के स्वरूप में आया। So this again, coming down as a man itself is a fantastic step of humility. एक इंसान बनना ही बहुत बड़ी हलीमी या दीनता दिखाता है। You don't realize what it is for God to become a man. और आप इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि क्या है कि एक परमेश्वर इंसान बने। I mean, if you see some poor ant crawling on the ground trying to drag one grain of rice somewhere, हाँ, आप देखते हैं कि छोटा सा चींटी जो है एक बड़े से दाने को उठा के खींच के लेके जा रहा है। how many of you would be willing to become an ant just to help that ant? आप में से कितने लोग जो है वो चींटी बनना पसंद करेंगे ताकि आप उस चींटी की जो मदद कर सकें। Even that is not a good enough picture of God becoming man. और वो चित्र जो है वो भी उसके लायक नहीं है कि परमेश्वर किस प्रकार से इंसान बना। And then becoming a man, he had every right to be like a king. अगर जो वो इंसान बनता है तो उसके अधिकार है कि वो एक राजा बने। He could still have been humility. For God to become a king on earth is humility. अगर जो एक परमेश्वर अगर जो वो राजा बनता है इस संसार का, तब भी वो एकदम हलीम हो रहा है। Coming to earth, he became a slave. लेकिन वो इस संसार में आया एक दास बनने के लिए। He saw all the disciples sitting and there was a bucket of water for people to wash the feet and there's no servant there. और देखते हैं कि चेले लोग बैठे हैं, वहाँ पे पानी है बाल्टी के अंदर, लेकिन कोई दास नहीं है पाँव धोने के लिए। Because in rich homes they had a servant to wash people's feet. क्योंकि जितने धनाढ्य लोग हैं उनके घर में जो है वहाँ पे दास लोग होते हैं। All the disciples are looking around, where is the servant? तो सब प्रेरित लोग देख रहे हैं कि अरे यहाँ का दास कहाँ है?
Matthew says, I'm chartered accountant. I don't do this type of और job. मत्ती ने कहा मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। Peter says, I'm the leader. That's not my और job. पतरस ने कहा मैं तो अगुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता। John says, I'm a relative of the high priest. I don't do that job. और योना ने कहा कि अरे मैं तो महायाजक का जो है रिश्तेदार हूँ, मैं नहीं कर सकता। Judas Iscariot says, I'm the only postgraduate here. I don't do that job. और इस्करियोत ने कहा कि मैं ही यहाँ पे जो है सबसे पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं कर सकता। Who's left? तो कौन बचा? Jesus. यीशु मसीह। So he takes the bucket, तो उसने वो बकेट उठाया, बाल्टी उठाया washes the feet, और चेलों के पांव धोए। and he says, I'm your Lord and Master. उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा गुरु But हूँ, I washed your feet to show you अगर जो मैं गुरु होकर तुम्हारा पांव धोता हूँ, I am among you as a slave. लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे बीच में दास के रूप में हूँ। That's the second step of Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा कदम। What is the first step? पहला कदम Humility. बिल्कुल नम्र करना। What is the second step? दूसरा कदम Humility. फिर से नम्र होना। Third, तीसरा Philippians 2:8. 2:18 Okay, फिलिपियों being a 2:8। slave, washing the feet, that itself is the lowest place you go to. और जब आप लोगों के पांव धोते हैं वही सबसे नीचा स्थान है। And then it says in verse 8, he humbled himself to be crucified on a cross. और उसके बाद लिखा है कि वो अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, That is क्रूस की मृत्यु भी सह ली। From slave down to criminal. यानी कि अपराधी बन गया। Not really a criminal, but looking like a criminal. वो सही में एक अपराधी नहीं, लेकिन एक अपराधी के समान लगने लगा। If people didn't know this was Jesus, they'd say, we have seen this, so many murderers are crucified every day, there's one more being crucified today. हाँ, तो वो लोग बोल सकते हैं कि हमने बहुत सारे अपराधियों को या चोरों को देखा है या खूनी को देखा है क्रूस पे लटके हुए, आज एक और लटका See, हुआ the है। Romans crucifying people was a common sight in Jerusalem. और रोमी साम्राज्य, रोमियों के लिए, रोमी सैनिकों के लिए क्रूस पे चढ़ाना एक रोज की बात है। People would walk up and down and see some people hanging on the cross, oh, one more murderer. तो जब लोग आते जाते हुए क्रूस पे किसी लटके हुए व्यक्ति को देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, एक और खूनी व्यक्ति। If they didn't know Jesus, they say, oh, one more there. Today there are 3 murderers there. तो अगर जो वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो उन्होंने ऐसा बोला होता कि ओहो, आज जो है 3 खूनी लटके हुए। Isaiah 53, the last verse says, he was numbered among the criminals. और यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि उसकी गिनती जो है अपराधी लोगों के साथ की गई। So what is the first step? पहला कदम God to man. वो एक परमेश्वर से इंसान बना, Humility. यानी कि दीनता, Man to slave. और इंसान से वो दास बना, Slave to criminal. और एक दास से वो अपराधी गिना गया। Not really a criminal. वो सही मायने में एक अपराधी नहीं, Willing to be considered. लेकिन उसकी गिनती अपराधियों के बीच में की So गई। I've told people, तो मैंने लोगों को कहा, I'll tell you the 3 secrets of the Christian life. तो मसीह जीवन का 3 C मैं बताता हूँ। People start writing down. हाँ, वो लिखने के लिए तैयार हो गए। Number 1, पहला humility. दीनता, Number 2, दूसरा humility. दीनता, Number 3, तीसरा humility. दीनता। If you haven't learned that, अगर जो आपने नहीं सीखा है you haven't learned the secret of the Christian life. तो आपने मसीह जीवन का जो रहस्य है, That's- भेद की बात नहीं That's समझा। what I mean by being broken. Broken, that's what I mean by being हाँ, broken. इसीलिए टूटा जाना मैं बताता हूँ। Jesus fell into the ground like a corn of wheat. प्रभु यीशु मसीह एक बीज के समान धरती पे गिरे। You know, you can take that corn of wheat and put it in a nice glass case in your window, हाँ, आप जो in है your case, cupboard. आप अपने कबर्ड के अंदर उस बीज को संभाल के, कुप्पी के अंदर संभाल के रख सकते हैं। You come back after 50 years, it's a beautiful corn of wheat inside that case. हाँ, वो जो मक्के का बीज है 15 साल के बाद भी वैसे का वैसा खूबसूरत बना रहेगा। But you put it in the ground, लेकिन आप जमीन में, मिट्टी में गाड़ें, it becomes ugly. वो एकदम कुरूप बन जाता है, Cracks open, उसका सब खुल जाता है trampled by people. और लोगों के द्वारा कुचला जाता है Underground, nobody can see it. और मिट्टी के नीचे दब जाता है, कोई देख नहीं सकता। You come back after 10-15 years. और 10-15 साल के बाद वापस लौटे It is millions of grains. तो वहां पे देख सकते हैं कि लाखों दाने आपको It's मिलेंगे। come up, वो बाहर आता है that's put into the ground again. और उसके बाद वो Many दाने more, फिर से many जमीन more पे come up, गिरते हैं, फिर and से, that's put in the ground again. और उसके बाद फिर से उग के आता है One grain became millions of grains. और एक दाना जो है वो लाखों दाने बन जाता If it है। wanted to be admired in a glass case, it would be one. अगर जो आप चाहते हैं कि सब आपकी खूबसूरती को निहारे तो There आप are- उस कुप्पी में रखे जा There are सकते हैं। Christians who want to be in a glass case, admired by others. Great preacher, great singer, great something or the other. अगर जो आप चाहते हैं कि सब लोग आपको निहारे तो आप अच्छे प्रचारक हैं करके, And the others who are willing to be broken, लेकिन दूसरे जो मसीह लोग हैं जो चाहते हैं कि हम टूटे, humbled,
अपने आप को नम्र Like करें, Jesus was dipped into the water. जैसे प्रभु यीशु That मसीह पानी में डुबाए Other गए people put you to death और लोग आपको मृत्यु के कगार पे डालें and you don't resist it. और उनका आप ना रोकें, Say, Lord, you're going to make this work for my good. और आप बोलते हैं कि प्रभु ये सब तू मेरे अच्छाई के लिए कर रहा है, That's Romans 8:28. और वही रोमियो 8 उसका 28 कहता So है, that I can become like Jesus, verse 29. और 29 में लिखा है ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के So स्वरूप में बनूं। God put those two verses together. और परमेश्वर ने दोनों को God एक साथ रखा है, Makes things work together for my good so that I become like Jesus. और परमेश्वर मेरे को हर एक चीज अच्छाई में बदलता है ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप बनूं। I want to be in a church that urges me to go in that direction every day. और मैं ऐसे कलीसिया का अंग होना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में हर दिन ऐसा करे, That's the only type of church I ever want to build in my life, और वैसा ही एक कलीसिया मैं अपने जीवन में बनाना चाहता हूँ where I can lead people in the right direction towards the right destination. जहाँ पे मैं लोगों को सही मार्ग दिखा सकता हूँ, सही जहाँ पे लक्ष्य है वहाँ की ओर लेके जा I want to सकता say if your church is only interested in collecting your money, हूँ। हाँ, हो सकता है कि आपकी कलीसिया जो है ज्यादा पैसे आपसे लेने के लिए you're definitely in the wrong church. अगर जो आप Because गलत कलीसिया में हैं। Jesus didn't go around with their offering bag after he preached. और प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ पे प्रचार किया वहाँ पे कोई ऑफरिंग बैग लेकर नहीं गया, He told people to give money to the poor, but never to himself. तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, उसने कहा कि गरीबों को दो। Yeah, give to the poor. Definitely, I also say that. और मैं भी यही कहता हूँ कि गरीबों को दो। Paul never said give money to me. और पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मुझे He पैसे said दो। there are some poor saints in Jerusalem. Please send some money to them. वो बोला कि यरूशलेम में कुछ गरीब भक्त लोग हैं, उनको दो, संत लोग हैं, उनको दो। You must be in a church that's teaching you to go the way of the cross, to become more like Jesus every day. और वो उस कलीसिया का अंग है जो सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बने और क्रूस में चढ़े। Especially in your home. खास करके आप अपने भवन में, घर में। That's where we begin to die to ourselves. और हमें अपने घर में पहले मरना सीखना है। That is the way of the cross. और वही क्रूस का मार्ग है। That's the message that's hardly preached in any church today. और यही संदेश जो है किसी और कलीसिया में जो है प्रचार नहीं किया But जाता। God is raising up a few churches here and there that are preaching it today. लेकिन आज परमेश्वर कई कलीसियाओं को उठा रहा है जहाँ पे ये प्रचार किया And जाता I है। praise the Lord for that. उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that these truths will sink deep into our hearts. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सच्चाइयाँ लोगों के हृदय में गड़ जाए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन।